میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا۔ لیکن چونکہ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ روزے کی حالت میں ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ہم کلام مقدس کی مدد سے سیکھیں گے کہ حقیقی روزہ کیسا ہونا چاہیے، یا کیسا روزہ ہے جو خدا اپنے لوگوں سے چاہتا ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں حقیقی روزہ، یہ ایسا روزہ جو خدا کی نظر میں مقبول ہو۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس روزے کے بارے میں سیکھیں جو خدا اپنے لوگوں سے چاہتا ہے، ہم 3 وجوہات کے بارے میں سیکھیں گے جن وجوہات کی بنا پر ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور آپ لوگ سوچیں گے کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ایسی 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خدا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم روزہ رکھیں یا روزے میں ٹھہریں۔ مقدس پاٹھی کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16 سے 18 آیت پڑھیں تو اس میں یسوع مسیح فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس مت بناؤ، کیونکہ جب تم اپنی صورت اداس بناتے ہو تو لوگ تو جانتے ہیں کہ تم روزہ دار ہو، لیکن تمہارا باپ جو پوشیدگی میں ہے اس کے پاس تمہارے اس روزے کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کتنے راز باز ہیں، ہم لوگوں کے سامنے یہ ثابت کریں کہ ہم کتنے رائچیس ہیں، ہم کتنے نیک ہیں، ہم کتنے پرہیزگار ہیں، ہم کتنے دعا گو ہیں، تو یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اس وجہ کے لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بالکل بھی روزہ نہ رکھیں۔ خدا کے عظیم خادم جان پائپر نے کتاب لکھی A Hunger for God، اور اس کتاب میں انہوں نے کوٹیشن لکھی جو مجھے بڑی پسند آئی، اور وہ کہتے ہیں اگر روزے کے پیچھے آپ کا مقصد لوگوں کی خوشنودی اور لوگوں کا سراہا جانا پسند کرنا ہے، یا آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کو سراہیں، تو اچھی بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو سراہیں گے۔ اگر آپ روزہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں تو خوشی کی بات ہے کہ لوگ آپ کو سراہیں گے اور پسند بھی کریں گے کہ اس بہن نے یا اس بھائی نے روزہ رکھا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف لوگ ہی پسند کریں گے، خدا اس روزے کو پسند نہیں کرے گا۔ سوچ، اگر ہمارے دل میں روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کریں یا لوگوں کے سامنے راز بس ٹھہریں، تو خداوند یسوع مسیح بالکل بھی نہیں چاہتے کہ اس مقصد کو لے کر ہم روزے میں ٹھہریں، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں تمہارا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تمہیں روزہ دار جانے گا۔ وہ باپ جو تمہیں پوشیدگی میں دیکھتا ہے صرف وہ جانے کہ تم روزہ دار ہو، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ روزے میں ہیں یا آپ نے روزہ رکھا ہے اور کسی کو پتہ چل جائے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کے روزے کا مقصد ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کے روزے کا تقدس جاتا رہے گا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر کوئی جان جائے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، لیکن روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے راز باز جانیں۔ دوسری بڑی وجہ ہمیں روزہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں جب میں روزے میں ٹھہروں اور روزے میں ٹھہر کر دعا میں بیٹھوں تو جو چاہے میں خدا سے مانگوں خدا میرے لیے وہ کر دے۔ ہم بالکل بھی ایسے روزے میں ٹھہر کر خدا کو ایسے ٹریٹ نہ کریں جیسے وہ بچوں کے کارٹونز میں چراغ رگڑنے پر ایک جن نکل آتا ہے، وہ کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا، اور اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، روزے میں ٹھہر کر خدا بالکل ہمارے لیے باؤنڈ نہیں ہو جاتا۔ ایسا نہیں کہ ہم روزے میں ٹھہرے تو اپنی صرف خواہشات کو سامنے رکھیں اور ہماری ساری وشز پوری ہو جائے، اور اگر ہم صرف روزہ اس مقصد کے لیے رکھتے ہیں تو بھی ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری بڑی وجہ میں شارٹ کروں گی کیونکہ آلریڈی ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ ہمیں روزہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم سب جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کی نجات ہم ایمان سے حاصل کرتے ہیں، مسیح یسوع کی نجات ہم ایمان سے حاصل کرتے ہیں،
हम फजल को ईमान से हासिल करते हैं, हम रास्तबाजी को जो मसीह यीशु की रास्तबाजी है उसे हम ईमान से हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि रोजे में ठहर कर मैं सबसे ज्यादा रास्तबाज हूँ, मैं सबसे ज्यादा बेहतर हूँ और अब जो मेरी नेकी है वो सबसे बढ़कर है, या हम दूसरों को नजरअंदाज करें या दूसरों को हकारत की नजर से देखें, तो मेरे अजीजों फिर भी हमें रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं। यशायाह नबी का सहीफा जो भी हवाला पढ़ा गया उसमें लिखा है कि खुदा से वो कहते हैं कि हम किस लिए अपनी जान को दुख देते हैं, हम किस लिए रोजे में ठहरते हैं और तू सुनता नहीं, अगर तू जवाब नहीं देता। मेरे दिल को हमेशा याद रखिएगा, खुदा चाहता है कि हम जब रोजे में ठहरे, हम जब रोजा रखें, तो हमारा बाप जो बशीरगी में है वो जानता हो कि हम उस बाप हालेलुया 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 हालेलुया। सो हम ये बात कर रहे थे कि जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो खुदा बाप चाहता है कि वो जाने कि हम रोजे की हालत में हैं। हमें हर एक को ये शो करने की जरूरत नहीं। दुआ और रोजे में ठहरना हमारे लिए नहायत एक अहम अमल है, एक मसीही ईमान का एक शेड्यूल है, एक नज़्म है जो मसीही ईमानदारों के लिए नहायत जरूरी है। लेकिन मैंने कहा बहुत सारे लोग अपनी विशेष को पूरा करने के लिए रोजा रखते हैं। मैंने बहुत से लोगों को इसलिए भी रोजे में ठहरते देखा है ताकि मेरी फलां से शादी हो जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब शादी हो जाती है तो उस शादी के कायम रहने के लिए हम रोजे में नहीं ठहरते। कितने जोड़े हैं, कितने बीवी हैं, कितने शोहर ऐसे हैं जो इस बात के लिए दुआ रोजे में ठहरते हैं कि हमारी शादी मजबूत हो। कितने लोग हैं जो इस बात के लिए रोजे में ठहरते हैं कि हमारे घर से जितने मसाइल हैं ये जाते रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब जमीन पर दो लोग मुत्तफिक होकर कुछ भी बांधेंगे तो वो आसमान पर बन जाएगा। कितना बड़ा और कितना खूबसूरत इख्तियार है जो खुदा ने ईमानदारों को सौंप दिया है। ये इख्तियार ईमानदारों के पास है। जब कोई दो लोग मुत्तफिक होकर किसी नेक इरादा को लेकर जमीन पर उसको बांधेंगे तो खुदावंद मसीह फरमाते हैं कि आसमान पर बन जाएगा। तो कितने मियां बीवी हैं, कितने जोड़े हैं, कितने बहन भाई हैं, कितने दोस्त हैं, कितने रिश्तेदार और कारब हैं जो दुआ रोजे में ठहरकर मुत्तफिक होते हैं अपनी जिंदगी के मसाइल को खत्म करने के लिए। तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे रोजे का मकसद किस तरह से हमारी जिंदगी में जाहिर होता है। हमें रोजा रखना खुदा को मैनिपुलेट करना नहीं है। रोजे का मकसद है हम खुदा को अपने आप, हम अपना आप खुदा को सौंप दें। हम रोजा इसलिए नहीं रखते कि हम खुदा को अपनी मर्जी बताएं, हम रोजे में इसलिए ठहरे कि खुदा की मर्जी को जान सकें कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में क्या है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों से ज्यादा ना हुई तो तुम आसमान की बादशाही के हरगिज़ लायक ना ठहरोगे। क्यों? क्योंकि फकीर और फरीसियों की रास्तबाजी क्या थी? जाहिर करना, दिखाना। वो तमाम वो काम करते थे जो लोगों के सामने थे, जो लोगों की नजरों के सामने थे। वो हर एक वो काम करते थे जिसको लोग देख सके और कहें कि ये सब रास्तबाज है। और यीशु मसीह चाहते हैं हमारी रास्तबाजी इनसे बढ़कर होनी चाहिए। और इनसे बढ़कर रास्तबाजी क्या है कि हमारे बातन में खुदा का खौफ हो। मेरे जीजों, जब हम रोजे में ठहरते हैं, जब हम दुआ में बैठते हैं या कुछ भी ऐसा खुदा की मर्जी के लिए करते हैं, तो याद रखें कि यीशु ने जो स्पॉट लाइट है, जो फोकस लाइट है, वो हमारे अमाल पर नहीं बल्कि हमारे बातन पर रखी हुई। आगे अतीक यकीनन अमाल और रसूमात और इंसानी कामों पर जरूर बुनियाद करता होगा, लेकिन आगे जदीद जो है, नया अहदनामा जो है, ये जो फजल का दौर है, ये आपके बातन पर फोकस करता है। आपके बातन में क्या है, आप जो कुछ कर रहे हैं उन तमाम चीजों को, रसूमात को लेकर आपके दिल में क्या कुछ चल रहा है। इसीलिए यीशु ने कहा, अगलों से कहा क्या था, ज़िना न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुमने इस नजर से किसी की तरफ देख लिया तो ज़िना कर लिया। और मैंने कहा कि नया अहदनामा आपके बातन पर नजर
करता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जब तुम रोजा रखो तो इस तरह से रखो कि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है, पोशीदगी इन सेंस ये आपका और बाप का एक पर्सनल रिलेशनशिप का अमल है, तो वो तुम्हें रोजा डाल जाने और तुम्हें अजर दे। लेकिन जो भी हमने हवाला पढ़ा इसमें बड़ी खूबसूरत बात यशायाह नबी फरमाते हैं, खुदा ने बनी इसराइल को 5 रोजे दिए। एक रोजा उनको गुलामी में जाने से पहले और 4 रोजे गुलामी से जब रिहाई पाई तो तब दिए। और ऐसा हुआ कि बनी इसराइल ने खुदा की तस्लीम की, उन रोजों की तस्लीम की, उसकी अहमियत को अपनी जिंदगी में नहीं दिया। तो एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब देना छोड़ दिया। वो रोजे में तो ठहरते थे लेकिन उसका तकद्दुस उनकी जिंदगी में काम नहीं करता था। वो दुआ तो करते थे लेकिन उनकी दुआओं का जवाब नहीं मिलता था। तो वो लोग खुदा से क्या कहते हैं, मैं तीसरी आयत पढ़ूंगी, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। अब ये खुदा से सवाल किया जा रहा है, हम रोजे में ठहरते हैं, हम दुआएं करते हैं, हमारी दुआओं का जवाब नहीं दिया जाता, तो ऐसा क्यों है। आप जानते हो खुदा क्या जवाब देता है? खुदा जवाब देता है मैं तुम्हारी दुआ और रोजे का इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि तुम रोजा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रखते हो। तुम ये जो रातबाजी की दौड़, जिस्मानी रातबाजी की दौड़ रहे हो, इसमें तुम एक दूसरे को पीछे छोड़ जाना चाहते हो। यहाँ पर तुम्हारा मकसद मेरी खुशनुदी नहीं है, तुम्हारे रोजे का मकसद मुझे खुश करना नहीं है, मेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में जानना नहीं है, बल्कि दूसरों की नजरों में अपने आप को रातबाज ठहराना। और खुदा कहता है इसलिए मैं तुम्हारी दुआ और रोजे का जवाब नहीं देता। तो फिर खुदा कैसा रोजा चाहता है, खुदा कैसा रोजा चाहता है? यहाँ पर लिखा है, देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी की तारीफ रखते हो और हर तरह की सब मेहनत लोगों से कराते हो। जब रोजे में होते हैं कभी इधर लेटते हैं कभी इधर लेटते हैं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, घर वालों से काम करवाया जाता है और ये महसूस करवाया जाता है कि मैंने आज रोजा रखा है। और खुदा ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि जो जान को दुख हम दे रहे हैं वो हमें लोगों पर नहीं थोपना, वो दुख हमें पोशीदगी में अपने बाप के साथ जाहिर करना है। और खुदा कहता है क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो हमारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तो अपने हम जिन से रूह पोशी ना करे। इससे चलता यार पीछे जाए तो खुदा कहता है कि हकीकी रोजा वो नहीं कि तू अपने सर को झाओ की माने झुकाए। झाओ एक ऐसी खास है, उसके अंदर एक खासियत है इस जड़ी बूटी के अंदर, इस झाओ के अंदर कि जब फ्लड आता है, तूफान आता है, पानी का ज्यादा बहाव आता है तो ये झुक जाते हैं। बाकी दरख्त बाकी पौधे टूट जाते हैं तूफानों में, वो टूट जाते हैं क्योंकि वो झुकते नहीं है। और ये झाव क्या करता है, ज्यादा बहाव आने के बाद झुक जाता है, और जब वो बहाव ठीक हो जाता है, हालात नॉर्मल होते हैं, तो वो फिर सरफराज होता है, फिर उठ खड़ा होता है। और खुदावंद चाहता है एक ईमानदार की जिंदगी में जब दुख और परेशानी और खास करके वो रोजे की हालत में हो तो वो अपने आप को झाओ की माने झुकाए। मैं उसको सरफराज करूंगा, मैं उसको उठा खड़ा करूंगा, मैं उसकी तमाम तंगी को, उसके उस दुख देने के अमल पर गौर करूंगा और उसका उसे अजर दूंगा। और फिर खुदा फरमाता है कि भूखे को खिलाए, नंगे को कपड़े पहनाए। आपने देखा होगा इस सीजन में बहुत सी कलीसियां ऐसी हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। लेंट सीजन के अंदर 3 चीजें बहुत जरूरी हैं किसी ईमानदार की जिंदगी में होना, वो ये है कि वो दुआ में ठहरे, वो रोजे में ठहरे और वो गरीबों को दे। हमें अगर पॉसिबल हो, हम किसी को जानते हो तो हम जाने कि हमें किसी की मदद करनी है, क्योंकि रोजे की भूख में हमें किसी दूसरे की भूख का एहसास हो सकता है। हम जान सकते हैं कि कोई किस कदर फिक्र में होता है जब उसके पास खाने के लिए नहीं होता। और खुदा चाहता है कि उसकी फिक्र की जाए, उसका ध्यान रखा जाए, उसको स्टेबलाइज किया जाए, ताकि हम सब मिलकर एक कम्युनिटी की सूरत ग्रो कर सके। तीसरी बात खुदा फरमाता है कि पहली बात जब तुम मेरे हजूर रोजा रखो तो अपनी खुशनुदी नहीं बल्कि मेरी रजा को देखो, मेरी खुशनुदी को देखो। दूसरी बात आपके रोजे में ये हो कि आप किसी की मदद करें, किसी को हेल्प करें। आप किसी गरीब को, किसी बेवा को जानते हो, किसी यतीम को जानते हो तो उसकी
मदद करे। और तीसरी बात खुदा कहता है कि जब तुम रोजा रखते हो तो मेरी खुशनुदी में रहते हो, दूसरों की मदद करते हो, अपने सर को जाओ की तरह झुकाते हो, तो आखिर में खुदा कहते हैं फिर क्या होगा? तब तेरी रोशनी सुबह की मानिक फूट निकलेगी। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिक फूट निकलेगी। वो रूहानी आलम में जब आप रोजे में ठहर कर दुआ करते हैं, रूहानी आलम में होने वाली तब्दीलियां जो खुदा आपके लिए फरिश्तों को तैनात करता है, जब खुदा आपकी जिंदगी में बहाली को एक्टिवेट करता है, जब खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर आपकी जरूरियात को पूरी करता है, तो आपकी जिंदगी एक सुबह की रोशनी की माने फूट निकलती है। और सुबह की रोशनी की एक हकीकत ये है कि जब सुबह होती है उस रोशनी को आप रोक नहीं सकते। जब सूरज निकलता है तो हम उस रोशनी को रोक नहीं सकते। और खुदा ईमानदारों से बात करता है, जब तुम रोजा मेरी खुशनुदी के लिए रखोगे, आज से और इंतज़ारी में रोजा रखोगे, तो तब तुम्हारी रोशनी सुबह की माने फूट निकलेगी। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे इर्द गिर्द के चंद लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आपकी जिंदगी में पैदा होने वाली रोशनी को तजर्बा करेगी। हर कोई जानेगा कि ये बहन, ये भाई पहले की निस्बत बहुत बेहतर ग्रो कर रहा है। और वो कहता है तब तेरी रोशनी सुबह की माने फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। आप जिस्मानी तौर पर तकवीयत का तजर्बा करेंगे, आप रूहानी तौर पर बेहतरी को अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। और खुदा बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। ये जो हरावल है, जब भी दो कौमें या दो ग्रोह आपस में जंग करते हैं तो जंग के लिए दस्तों को तैयार किया जाता है, और जो सबसे पहला दस्ता होता है उसको हर्रावल कहा जाता है। और अब खुदा यहाँ पर कह रहा है कि जब तुम रोजा रखते हो सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ, आजिज़ी के साथ, इंतज़ारी के साथ, तो तुम्हारे मुखालिफ खड़े हर दुश्मन के अगेंस्ट तुम्हारी सदाकत खड़ी होगी। और वो कहता है वो जो तुम्हारी सदाकत है, वो जो तुम्हारी सच्चाई है, वो तेरी हरावल होगी, वो इब्लीस को और तेरे खिलाफ खड़े होने वाले दुश्मनों को हरा देगी। दूसरी बात खुदा फरमाता है, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। अब जो चंडावल है वो ऐसा दस्ता है जो पीछे से रिकवर करता है, पीछे से कवर करता है, ताकि अगर कोई दुश्मन पीछे से या साइड से आए, दाएं बाएं से अटैक करे तो उसको फेस कर सके, उसको हैंडल कर सके। तो खुदा कहता है अगर तेरी सदाकत उस जंग में है, इब्लीस के साथ, तासीरों के साथ, गुनहगारों के साथ और अपनी जात के साथ, तो क्या होगा? उस हरावल की जंग में खुदा का जलाल तुम्हारी मदद करेगा और तुम उसमें बराबर हो जाओगे, तुम उसमें कामयाब हो जाओगे। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और तेरा जलाल, खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। खुदावंद उस ईमानदार को जो इस बात को दिल में रख कर रोजा रखता है कि ये मेरा दुख, ये मेरा रोजा, ये मेरी भूख और ये मेरी तकलीफ की शिद्दत सिर्फ खुदा की खुशनुदी के लिए है, और मैं अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को जानने का तालिब हूँ, तो खुदा कहता है तब मैं तुझे महफूज करूंगा। वो आपको आगे और पीछे से घेर लेगा। और खुदा फरमाता है तेरे दुश्मन एक रास्ता से आएंगे और सात सात रास्तों से भाग कर जाएंगे, और लोग जानेंगे कि ये बहन की जिंदगी में दुख क्यों नहीं है, ये क्यों इतने खुश है, इनकी जिंदगी में इतनी फरावानी क्यों है। तो उसकी वजह ये होगी क्योंकि आपने पोशीदगी में, रोजे और दुआ की हालत में खुदा की खुशनुदी का तजर्बा किया। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि ईमानदार इस तरह से रोजे में ठहरे। मेरे दिलों, हम जब भी रोजा रखें, हम जिस हालात में भी रोजा रखें, हम अगर किसी मकसद के लिए रोजा रखते हैं तो ये जरूर जानें कि उस मकसद में खुदा की मर्जी को रखें कि खुदा मैंने इस मकसद के लिए रोजा रखा है, क्या तू इस मकसद को मेरी जिंदगी में जाहिर करना चाहता है? क्या वाकई में ये मकसद तेरा भी है? क्या वाकई ये बरकत तू मुझे देना चाहता है? तू मुझे इन हालात से आजाद कर देना चाहता है? क्या तू मेरी जिंदगी में फरावानी लाना चाहता है? तो यकीनन खुदा आपके रोजे का अजर आपको देगा। सो हम सब ईमानदार जितने भी आज रोजे की हालत में हैं, इस बात को अपने दिल में रखें कि आज हमारे रोजे का मकसद खुदा की मर्जी को जानना है। हमारे पास बहुत से मकासद हैं, हमारी बहुत सी जरूरियात हैं, हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन इन सब को खुदा के हजूर ये सोच कर रखना है कि खुदा इन सब की बाबत तू मुझ पर अपनी मर्जी को जाहिर कर। आमीन। खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको
शुक्रगुजार हैं। हम सभी इसी तकद्दुस में रहते हुए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे दरमियान सिस्टर नबीला उसे तो उठा सकते हो, खुदा के मस्तक पर आए और कलाम की शुक्रगुजारी में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया, उसका शुक्र करेंगे। हालेलुया, उसके कलाम के लिए, रोजे के लिए जो हमारे ताल्लुक को बहाल करता है। हालेलुया, Rabisha Saraba Sina Sarvashara Rabba Babishara Sabara Sarvashara दूस आसमान का तेरा शुक्र करते हैं इस लम्हा इस वक्त के लिए, आज के 5 दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा है बाप। जितने भी जाने तेरे आगे झुकिए ने नाम बना बरकत दे है बाप। तेरा शुक्र करती है बाप, तेरी शफकत काफी है, तेरा प्यार निराला है बाप, तेरी शान जलाली हम तुझे धन्यवाद कहते हैं बाप। आज के मैसेंजर ने जो भी तेरे कलाम का बीज बोया है बाप, उसे हम 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने हैं बाप। सारा जलाल यीशु नाम को देती है बाप। हम दिखावे का रोजा ना रखे है बाप। हमने पूरी रूह और सच्चाई से मेरे आगे रोजा रखे है बाप। हमें बरकत दे ताकि आरती और इंसान साथ तेरे साथ चलने वाले बने हैं बाप। ताकि रास्ते का लिबास पहन सके है बाप। तू बरकत दे क्योंकि तू बरकत देने वाला खुदा है बाप। जो मांगा यीशु नाम से पाए, यीशु नाम से मांगती हूँ। हालेलुया, अपने सरों को उठाएंगे, अदनान भाई की रहनुमाई में एक गीत गाएंगे और इस दौरान अपने हदिया नजराने पेश करेंगे। हालेलुया, झूठा फतवा लाया यीशु मेरिया ने हथिया आया, यीशु मेरिया ने हथिया बादशाह दे बादशाह दे झूठा फतवा लाया यीशु मेरिया ने हथिया आया, यीशु मेरे हथिया कपड़े पारे होते कपड़े जुल्म दा पांबड़े ऐसा मचेया, जुल्म दा पांबड़े ऐसा मचेया, वैरिया को बच ना सकेया, जालिमा को बच ना सकेया, कहते सूली चारों झूठा फतवा लाया यीशु मेरिया ने हथिया आया, यीशु मेरे हथिया आया, यीशु मेरे हथिया
कपड़े पाड़े होते झुके कपड़े पाड़े होते झुके सब गिराया बेशक यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों की लानती मौत को कबूल किया ताकि मैं और आप अपने गुनाहों से निजात पाएं। हालेलुया। अभी वक्त है कि हम आपकी दुआ में शरीक होंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा के बंदा डॉक्टर लियाकत से दरखास्त वो खुदा के मस्का पर आएंगे और आपकी दुआ में हम सभी की रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। सभी सर उसकी हजूरी में झुक जाएंगे और आंखें बंद करेंगे। खुदा जो आसमान से शांत है और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है। जमीन आसमान के खालिक और मालिक खुदा पर आज तेरा शुक्र करे खुदा। तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र गुजार है खुदा। जितनी जाने तेरे आगे सब है एक एक पर तेरा रहम तेरा फजल वाला हाथ है खुदा। जो तेरे लोग रोजा की हालत में खुदा इनके दिलों को जानता है। हर तरह की ख्वाहिश को खुदा अपने अल्लाह की खजाना से पूरा कर। तेरे लोगों पर तेरी बरकत खुदा तू इसी तरह अपने लोगों को अपने जलाल में अपने अरफान में बढ़ाता जाए और ये बहुत सी जिंदगियों के लिए तरक्की का सबब है। देख खुदा जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया इस जिंदगी ने 100 गुना और हमेशा की जिंदगी का वास्ता ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से सुन और बख्श दे। आमीन। खुदा की सगाई दुआ में सब शामिल हुए। हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना है। तेरी बादशाही है। तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हमारी रोज की रोटी आज और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया तो भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से जो बादशाह और हमेशा करेगा। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ हाज़िर जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक रहती है। हमें ये वाले का कदम होता है खुदा सबको बरकत दे।